میں اپنا برا بھلا تم سے بہتر سمجھتی ہوں، تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ رادیا نے رامش کے کردار پر چوٹ کی، چہرے پر ناگواری تھی۔ یہی خرابی ہے تم لوگوں میں، مفت کے مشورے کو بھی قبول نہیں کرتے۔ رامش پر رادیا کی چپتی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے مطمئن سا دھواں اڑاتے ہوئے بولا، تو پھر رامش آفندی، تم ان خراب لوگوں کے درمیان کیوں آ گئے ہو؟ تمہیں دعوت نہیں دی تھی کسی نے؟ رادیا بھنا کر بولی۔ آر یو آر یو اسکیئر آف می؟ رامش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اب۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس طرح مجھے بار بار تنگ کر کے کیا ملتا ہے تمہیں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ رادیا جو اس کی شوق نظر اور تبسم دیکھ کر تاؤ کھا کر رہ گئی تھی، روانی میں غلط بات کہہ گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ رامش خباثت سے ہنسا، پھر اس کے تپتے چہرے پر نظریں جما کر بولا، جاگی نہ تھی نسوں میں تمنا کی ناگنے، اس گندمی شراب کو جب تک چکھا نہ تھا۔ اور رادیا پسینے میں نہا گئی، چہرہ یکلخت گرم ہو گیا۔ رادیا کا دل چاہا ایک زور کا تماچا اس ذلیل شخص کے منہ پر دے مارے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اسی وقت خان بابا اندر آ گئے اور رادیا نے کوارٹر کی طرف جاتے ہوئے خان بابا کی آواز سنی، صاحب، آپ سے کوئی میم صاحب ملنے کے واسطے آئی ہے۔ شکر ہے مسز ہیدری آپ واپس آ گئی، ورنہ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ لاہور آپ کو راس آ گیا ہے اور اب آپ کو بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ رادیا اپنائیت سے کہہ رہی تھی، ارے وہ تو میرے میاں وہاں پہنچ گئے تھے تو انہوں نے آنے دیا، ورنہ اماں تو اب بھی روک رہی تھی۔ شادی کے بعد ویسے بھی میکے کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ مسز ہیدری کے انداز سے جھلکتے غرور کو دیکھ کر رادیا چپ سی ہو گئی۔ رادیا پلیز، میرا ایسا ویسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ مسز ہیدری ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ میں جانتی ہوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میکے کا مان لڑکی کی شادی ہوتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ رادیا کا زخم ایک دم ہی ہرا ہو گیا۔ اچھا چھوڑو، وہ کشمیر کی کلی لیلا نظر نہیں آ رہی؟ کہیں کسی کے ساتھ پھر تو نہیں ہو گئی؟ مسز ہیدری نے موضوع بدل دیا، ہارون کے ساتھ مری گئی ہوئی ہے۔ میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ تعجب کی بات ہے نا مسز ہیدری کہ اس کے رشتہ دار بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، مگر کسی نے کبھی اس کی خبر نہیں لی۔ کیا تمام رشتے ناتے صرف ماں باپ کی زندگی تک ہی زندہ رہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اپنوں کی بے رخی نے اس کو زیادہ ہٹ دھرم، بے پرواہ اور آزاد منشی بنا دیا ہے۔ رادیا پہلی بار لیلا کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ ہاں ڈیئر، اب ایسا ہی ہے۔ وہ پرانا وقت تھا جب یتیم لڑکی کو سارا خاندان اپنی عزت سمجھتا تھا۔ اب تو لڑکی ذات کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اور پھر اس مہنگائی کے دور میں جہاں اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہے، وہاں کون کسی غیر کو کھلا پلا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر برائی کو کوئی بھی اپنے گھر دعوت نہیں دیتا، سمجھی؟ مسز ہیدری زمانہ شناس تھی، اس لیے تفصیلاً جواب دیا۔ اب لیلا اتنی بھی بری نہیں ہے مسز ہیدری، بس دوستیاں زیادہ کرتی ہے۔ رادیا شریر انداز میں بولی، اس طرح مسکرایا کرو، اچھی لگتی ہو۔ مسز ہیدری نے اس کی دل مو لینے والی مسکراہٹ کو توصیفی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاپا کیوں نہیں آتے؟ وہاں سب کو ان کے پاپا لینے آتے ہیں۔ پیری مسلسل یہی پوچھ رہی تھی۔ جب سے وہ کیئرنگ سینٹر جانے لگی تھی، پاپا کی کمی کو زیادہ محسوس کرنے لگی تھی، اور پھر بچوں کے کھلونے دیکھ کر فرمائش شروع کر دیتی تھی۔ رادیا اور بھی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ میں نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاپا جلد ہی آ جائیں گے، رادیا نے پرانا جواب دہرایا۔ نہیں، ان سے کہیں کہ فیری کہتی ہے جلدی آئیں۔ ماما پلیز، پاپا سے کہو نا۔ فیری پہلے چیخی، پھر رادیا سے لپٹ کر ملتجی انداز میں بولی، میری جان، اچھے بچے ماما کو تنگ نہیں کرتے بیٹا۔ رادیا نے بامشکل اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا، فیری کو سینے سے لگا کر آہستگی سے کہا، چلو ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ہے، کل پھر میں اپنی بیٹی کو چاکلیٹ لے کر دوں گی، اب چلو۔ رادیا فیری کو بہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے نہیں جانا، میں انکل کے پاس جا رہی ہوں، نہیں بولتی میں آپ سے۔ رادیا روٹھ کر
कोठी के उस तरफ भाग गई। राधिया ने खुद को यासियत का शिकार नहीं होने दिया। मिसेज हयात का घर का दरवाजा खुला हुआ था। उनके अपने बच्चे भी अब तक किताबें लेकर बाहर नहीं आए थे। राधिया परेशान सी एक दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अंदर से आती मिसेज हयात की आवाज पर ठिठक कर रुक गई। बस समझो कि चिड़िया जाल में फंस गई है। बस थोड़ा सब्र से काम लो। मिसेज हयात एक घटिया औरत की तरह बोल रही थी। मेरी जान, जरा जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि चिड़िया उड़ जाए। मिस्टर हयात की आवाज राधिया ने पहचान ली। आज तक कोई उड़ने दी है जो ये फुर हो जाएगी। बस एक दो दिन ठहर जाओ, चाय की कप में गोली भी तो मिलानी है। बेटी भी बड़ी खूबसूरत है, दोनों के मुंह मांगे दाम मिलेंगे। और फिर आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए कोई मसला पैदा नहीं होगा। मुझे तो लगता है तुम्हारी अपनी नीयत खराब हो गई है राधिया पर। मिसेस हयात अपने घिनौनी प्लानिंग से अपने शौहर को मुत्तला कर रही थी। मिस्टर अकबर का मक्काराना कहका राधिया को दहला गया। जर्सी और गर्म शॉल ऊपर लेने के बावजूद उसको अपना आप गर्म दहकता हुआ ईंधन महसूस हुआ। कान साए साए करने लगे थे। कैसे और किस तरह वो क्वार्टर पहुंची थी, उसे इल्म नहीं था। दिमाग में तरह तरह की सोचों के झक्कड़ चल रहे थे। मिसेज हयात का करख चेहरा और हलावत से भरपूर लहजा याद आ रहा था। मिठास में डूबे उनके अल्फाज चेहरे का साथ क्यों नहीं देते थे। अब उसकी समझ में आया था। या मेरे खुदा, ये कैसी तेरी दुनिया है और कैसे बंदे हैं तेरे। खुदगर्ज, मतलब परस्त, लालची, मुफाद परस्त, अय्यारो मक्कार, दोगले, फिर तो तमा इतनी ज्यादा इनके अंदर रच बस गई है कि अंधे हो गए हैं, बेशऊर हो गए हैं। अगर बिनाई और शऊर रखते तो किसी से जिंदगी जीने का हक ना छीनते। और मिसेस हयात औरत होकर एक औरत की बर्बादी चाह रही थी। खुद एक माँ होकर दूसरी माँ को रुस्वा करने पर तुली हुई थी। बिनते हव्वा होकर दूसरी बिनते हव्वा को फरोख्त करने का मंसूबा बना रही थी। जैसे वो कोई भेड़ बकरी हो, जैसे वो कोई भेड़ बकरी हो। मेरी मासूम बेटी को भी उस नजर और जाविये से देखती रही। अपनी भी तो उनकी दो बेटियां हैं। या मेरे खुदाया, अगर आज मैं ये सब ना कुछ सुन लेती तो मैं कभी भी उनके नकाब लगे चेहरे के पीछे छुपी मकरू सूरतों को पहचान ना पाती। और फिर आगे का सोचकर राधिया का दिल नीचे बैठता गया। सर चकराने लगा, कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। यूं लग रहा था कि वो शोलों की लपेट में आ गई है। यख सर्दी के बावजूद उसने फैन ऑन कर दिया और चकराते सर को दोनों हाथों में थाम कर नीचे आ खड़ी हुई। आप ट्यूशन पढ़ाए बगैर आ गई? पैरी जो दबे पांव अंदर आ गई थी। राधिया की टांगों के करीब खड़ी पूछ रही थी। पैरी मेरी जान। राधिया ने उसे अपनी बाहों में भरकर बेख्तियार चूमती गई। आंखें थी कि बहे जा रही थीं। क्या हुआ मामा? आंटी ने डांटा है? पैरी मासूमियत से पूछ रही थी। नहीं बेटा, आपको कैसे मालूम है कि मैं पढ़ाए बगैर आ गई हूँ? राधिया ने आंसू पोंछते हुए चौंक कर पूछा। मैं और अंकल आपको दूरबीन से देख रहे थे, वो उधर से। पैरी ने कोठी की तीसरी मंजिल की तरफ इशारा करते हुए बताया। राधिया फटी फटी मुतहिर निगाहों से पैरी के खिलते चेहरे को देखती रही। उस वक्त उसको बेसाख्ता उस फाख्ता की कहानी याद आ गई, जिसके दोनों तरफ मौत थी। एक तरफ जहरीला सांप तो दूसरी तरफ संगदिल शिकारी। अचानक ही राधिया के जहन में रामिश आफंदी की बातें बाज़गश्त करने लगी। दो चेहरे वाला और बदनीयत इंसान ज्यादा खतरनाक होता है बानिस्बत ज़ाहिरी शैतान सिफत इंसान की। तुमको याद रखना चाहिए कि तुम माँ हो। इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। उसकी नजरों में क्या होता था वो जान गई थी। वो अपनी काली चमकदार आंखों को सुकेड़कर उसे टटोलता था, चेहरे को पढ़ता था, किरदार की कमजोरी को खोजता था। इसका मतलब है रामिश आफंदी, तुम उन लोगों के बातिन को जानते थे, अंदरूनी सरगर्मियों से बाखबर थे। इसलिए मुझे इशारों कनाइयों में समझाते रहे, तनबीह करते रहे, मगर साफ अल्फाज में क्यों ना बताया तुमने। तुम तो उस मुल्क से आए हो
जो सब मुंह पर कह देते हैं, और तुम भी यही करते हो। फिर अब क्यों ना ये किया? अगर उनकी असलियत और हकीकत मुझे बताने की कोशिश करते, तो क्या मैं यकीन कर लेती? नहीं, इसलिए कि रामेश आफंदी, तुम मेरे नज़दीक काबिल नफ़रत और बेकिरदार शख्स हो। ऐसे शख्स की बात को कौन सच मानता है? आज की तरह तुम पहले भी मुझे वहां से देखते रहे थे। क्यों? किस लिए? क्या तुम उनके बुरे इरादों को भांप गए थे, जो उन पर नजर रखते थे? अगर ऐसी वैसी कोई बात हो जाती, तो क्या तुम मुझे बचाने आते? रामेश आफंदी, क्या अभी तुम में इतनी सी शराफत और इंसानियत बाकी है, या फिर यूं ही तमाशाई बने खड़े रहते? हाँ, तुम यही करते, क्योंकि इस तरह तुम्हें मेरी तजलील करने और मुझ पर हंसने का मौका मिल जाता। सोच सोच कर आसाब शल हो गए थे। दिमाग माउफ हो गया था। जिस्म बेजान महसूस होने लगा तो लेट गई, और दुखा हुआ दिल अपने रब से दुआ मांगने लगा। तू बहुत रहीम है मेरे मौला, जिस तरह तूने अब मुझ गुनहगार पर अपना करम किया है, इसी तरह मुझे अपनी पनाह में रखना। मुझे इज्जत की मौत देना। अपने रब्बे करीम को याद करते करते उसकी आंख लग गई। रामिश ने पापा और शाहजेब के लिए उनके फेवरेट शायरी की बुक्स खरीदी थी, और वक्त गुजारी के लिए उनको पढ़ रहा था। ब्लैंकेट इर्द गिर्द लपेटे सोफे पर ही दराज था। कमरा नीम गरम था। साहब, जल्दी आइए, पुलिस आई है। वो राधिया बच्चे को पकड़ने के वास्ते आई है। खान बाबा हिरासा से जल्दी जल्दी बोल रहे थे। पुलिस? कहाँ आई है? रामेश, जो पढ़ने में मुनहमक था, ना समझते हुए दोबारा पूछा। साहब, पैरी की मामा को पकड़ने के वास्ते आई है पुलिस। उनको कोई गलत फहमी हुआ है। आप चलो साहब। खान बाबा ने हाथ जोड़ दिए। रामेश हैरान सा बाहर को लपका। व्हाट इज गोइंग ऑन? रामेश ने पुलिस इंस्पेक्टर से मुसाहिफे के दौरान पूछा। निगाह रादिया पर थी, जो फेरी को टांगों से चिपकाए लरज रही थी। रंगत खजा रसीदा पत्ते की तरह हो रही थी। होंठ खुश्क और आंखों में दहशत थी। आपके सामने घर में जो लोग रहते हैं, हम अरसा दराज से उनकी तलाश में थे, मगर ये लोग हमेशा चकमा देकर फरार हो जाते थे। मगर अब उनके हाथों बर्बाद होने वाली एक लड़की गवाही देने पर तैयार हो गई है। तमाम सबूत मिल जाने पर उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन खातून का भी वहां आना जाना था, हमें मोहल्ले वालों ने बताया है। ये भी शक के दायरे में आती हैं, इसलिए पूछगछ के लिए इनको हमारे साथ चलना होगा। यू नो, इट इज आवर ड्यूटी। इंस्पेक्टर ने फौरन तफसील बताई, ताकि जल्द अज जल्द कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। या फिर वो रामिश आफंदी की पर्सनैलिटी और लबो लहजे से मरूब हो गया था। आई नो इट इज योर ड्यूटी, बट इंस्पेक्टर, शी इज अ रिस्पेक्टेबल लेडी। सारी कॉलोनी इनको जानती है। आप इनके स्कूल से इनकी रेपुटेशन मालूम कर सकते हैं। सिर्फ शक की बिना पर आप एक खातून को पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जा सकते। इस तरह तो मैं और खान बाबा भी उनके घर एक आध बार गए हैं, तो क्या हम भी मुजरिम हो गए हैं? रामेश का ठोस लहजा इंस्पेक्टर को पजल कर गया। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, इनको साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर धीमे पड़ते हुए बोला। नो, शी विल नॉट गो। मैं चलता हूँ आपके साथ। डीसी अकरम से मैं खुद बात कर लूंगा। रामेश जान गया था कि इंस्पेक्टर में कोई इतना खास दमखम नहीं, इसलिए डीसी अकरम का जिक्र कर दिया, जिनसे उनकी कुछ दिन हुए अलीक सलीक हुई थी। वैसे भी उस रामिश आफंदी की शख्सियत और अंदाज में ऐसा रोबो दबदबा था कि इंस्पेक्टर हकला कर रह गया। अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप डीसी साहब के दोस्त हैं? आपकी खुशी में हमारी खुशी है। इंस्पेक्टर फौरन ही अपनी ड्यूटी भूल गया। मुसाहिफे के बाद अपने साथियों के साथ चलता बना। रामिश ने जाते जाते एक नजर रादिया पर डाली, जो मुतवश नजरों से अब तक साकत खड़ी वहीं देख रही थी, जहां कुछ देर कबल इंस्पेक्टर खड़ा था। हम इज्जतदार लोग हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम बेटियों वाले हैं। मिसेज हयात जोर जोर से चीख कर अपनी शराफत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ये जुल्म मत करें। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों पर रहम करें।
मिसेज हयात की आवाज भी बाहर से सुनाई दी। तुमने कभी किसी बच्चे और लड़की पर रहम किया था जब उनको अगवा करती थी, बेचती थी, इसलिए कि वो दूसरों के बच्चे थे? अब अपनी औलाद के लिए तुम्हें रहम चाहिए। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जेल में रहेंगे। ठीक ही कहते हैं वालदैन के ठीक ही कहते हैं। वालदैन के गुनाहों की सजा बच्चे भुगतते हैं। चलो बिठाओ इन्हें गाड़ी में। इंस्पेक्टर अपनी उसी करख्तगी के साथ बोला। या मेरे खुदा, इतना फरेब कैसे? बेजमीर लोग हो गए हैं। शुक्र करो रादिया, अल्लाह ने तुम्हें बाल बाल बचा लिया। मिसेज हैदरी तमाम वाकया सुनकर रादिया को एक बाजू के हल्के में लेकर तसल्ली देते हुए कह रही थीं। हाँ मिसेज हैदरी, वरना आज यहाँ मेरी आपको लाश मिलती। रादिया 2 दिन में ही बरसों की बीमार लग रही थी। आंखें रगड़ते हुए बोली, बस करो रादिया, खुदा के हर काम में बेहतरी होती है। खत्म हो जाएंगी ये आजमाइशें भी। मिसेज हैदरी मुशफिकाना अंदाज में गोया हुई। नहीं मिसेज हैदरी, ये सब तिफिल तसल्लियां हैं। आजमाइशें कभी खत्म नहीं होती, और मेरे लिए तो हर कदम पर इम्तिहान है। हर राह पर एक नई आजमाइश है। आप बताइए मिसेज हैदरी, मैं अगर इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ तो क्या ये मेरा हक नहीं है? मैं अपना और अपनी बच्ची का पेट हक हलाल की कमाई से पालना चाहती हूँ, तो क्या ये जुर्म है? मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मर्द की जात ही इज्जत और नामूस की सर्टिफिकेट होती है? अगर मेरे सर पर कोई साहिबान नहीं है, तो क्या मेरे घर की चार दीवारी में सबके लिए दरवाजे और खिड़कियां बन गए हैं, जहां वो अपनी हवसज़दा आंखें गाड़े मुंतजिर खड़े हैं कि कब उस कमजोर और नातवा औरत की हिम्मत टूटती है ताकि वो उस पर टूट पड़े। मैंने मोहब्बत की, यही मेरी गलती है, और उसकी ही सजा भुगत रही हूँ। मगर जो गुनाह मैंने अपनी माँ और बाप को नाराज करके किया है, उसका कोई कुफ्फारा नहीं है। और ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, उन्हीं की बददुआओं और आहों का नतीजा है। वो औलाद कभी आबाद नहीं होती, कभी सुखी नहीं रहती जिसके नसीब में वालदैन की दुआएं ना हो, जो अपने वालदैन की तौहीन का बायस बनती हैं। उस औलाद को भी कभी इज्जत नहीं मिलती। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मिसेज हैदरी कि कुएं में छलांग लगा दूं या फिर फेरी को साथ लेकर किसी पटरी पर लेट जाऊं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अखबार में 2 लाइन की खबर आ जाएगी कि गुर्बत व अफलास से तंग आकर माँ बेटी ने खुदकुशी कर ली। अगर कभी मैं ऐसा कर बैठी ना मिसेज हैदरी, तो आप इस दुनिया को बताइएगा कि भूख ने नहीं, बल्कि मर्द के खौफ ने उन्हें मरने पर मजबूर किया है। राधिया कनौती हो रही थी। अंदर ऐसी घुटन थी कि उसको बाहर निकालने के लिए वो लफ्जों का सहारा ले रही थी। वहशत ज़दा सी अपनी मायूसी और खौफ पर काबू नहीं पा रही थी। राधिया, ये ऐसी हौला देने वाली बातें मत करो। खुदा अपना फजल करेगा। दुनिया में अभी बहुत अच्छे लोग हैं। अब रामिश आफंदी को ही देख लो। कैसा भी है, तुम्हारे साथ तो भलाई ही की है उस वक्त। चलो, अब मुंह हाथ धो और मेरे साथ चलो, फ्रेश हो जाओगी। 2 दिन स्कूल नहीं आई तो मैंने सोचा कहीं फेरी बीमार ना हो, मगर मुझे क्या मालूम था कि अम्मा साहिबा ही मरीजा बनकर लेटी होंगी। मिसेज हैदरी ने राधिया का ध्यान बटाने के लिए शगुफ्ता से अंदाज में कहा, और फिर गोया हुई। क्या ख्याल है, चलते चलते रामेश साहब का शुक्रिया अदा ना करते चलें? खुश हो जाएगा कि तुम इम्प्रेस हो गई हो। संजीदा या गैर संजीदा सिचुएशन में आप मज़ा का कोई रुख निकाल ही लेती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी इस अफ़सरदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ। फेरी अलग चुप-चुप सी हो गई है। चलिए फेरी को भी साथ लेते हैं। रादिया चादर लेने चल दी। रादिया मिसेस हैदरी की आदत को जानती थी कि वो जब तक नॉर्मल नहीं होगी, वो उसे तन्हा छोड़कर नहीं जाएँगी। राधिया जो स्कूल से आई थी, वो सती लॉन में पड़े भालू और गुड़िया देखकर चौंक गई। फेरी फौरन उनकी तरफ भाग गई। बाबा, ये यहाँ क्यों रखे हैं? राधिया ने खान बाबा से पूछा। साहब ने खुद रखा है। बोला कि हम ये फेरी के वास्ते लाया था। ताले के अंदर इसको रखने का क्या फायदा? खान बाबा ने बताया। ताले के अंदर क्या मतलब? राधिया ने चौंक कर पूछा। सुबह साहब सुबह चला गया वापस। हमको बताना याद नहीं रहा। खान बाबा के जवाब ने राधिया के अंदर गोया एक नई रूह फूंक दी। सारा जिस्म हल्का फुल्का हो गया। मुसरत के एहसास से चेहरा तमतमा उठा। शुक्र है,
राधिया ने दिल ही दिल में कहते हुए गहरे सुकून का सांस भरा। ये 3 माह तो एक लड़की की खातिर पाकिस्तान रुका रहा। अमेजिंग। शाहजेब मुतहिर सा रामिश को देख रहा था, फिर अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोला, क्या बहुत खूबसूरत थी। उसको देखने के बाद ही यकीन आया कि गॉड इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। कुदरत का एक मुकम्मल और नायाब शाहकार, और उस पर उसकी सांवली रंगत उसको मजीद पुरकशिश बनाती है। और उससे भी बढ़कर उसका गुरूर उसको सबसे मुमताज करता है। रामिश साफ गोई से बोला, और हमेशा की तरह तूने उसका भी गुरूर खरीद लिया होगा। शाहजेब जो रामिश की आदत से वाकिफ था, दुख से बोला, कोशिश तो बहुत की मगर कामयाब नहीं हुआ। और फिर रामिश ने उसे तमाम हालात से आगाह कर दिया, और अब उसके गुरूर को तोड़ना है मुझे। रामिश ने आखिर में कहकर गिलास होंठों से लगा लिया। शेम ऑन यू रामिश। तू एक कमजोर और बेआसरा सी लड़की को तंग करता रहा, उसे वरगलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तू इतना गिर जाएगा अपनी जिद में, मुझे नहीं मालूम था। तफ है तेरी मर्दानगी पर। शाहजेब रामिश को मलामत कर रहा था। वो लड़की मेरे लिए अब चैलेंज बन चुकी है शाहजेब। बेशक वो बहुत हसीन और जमील है, मगर तुम जानते हो मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो टूट नहीं जाती। उसकी जात का मान और गुरूर खाक में मिला दूंगा। एक शेर याद आ रहा है, गुरूर उस पे बहुत सचता है मगर कह दो उसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। शायर ने यकीनन उस लड़की के लिए ही लिखा है। रामिश का इरादा अब भी मजबूत था। सिप लेते हुए वो बराबर मुस्कुरा रहा था। शर्म कर रामिश, मर्द हमेशा अपने बराबर के फर्द से टक्कर लेता है। और तू जिसे लड़की कह रहा है वो माँ भी है, मत भूल। शाहजेब अब गुस्से में आ गया था। आह फेरी, व्हाट ए चाइल्ड। बिल्कुल एंजल लगती है। और सच पूछ तो अब तक सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से मैं उस लड़की को निहायत सीधे और आराम से अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहा, वरना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी। रामिश उस वक्त बिल्कुल सच कह रहा था। रामिश, अब तू वापस आ गया है, निकाल दे उसे अपने जहन से। यहाँ बहुत है तेरे इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए। शाहजेब बोला, नेवर। इनफैक्ट उस पर जरा इम्प्रेशन जम जाए, इसीलिए वापस आ गया हूँ। पापा भी याद आ रहे थे, और फिर तू भी तो बार बार फोन कर रहा था। जाना तो हर हाल में है। रामिश पर शाहजेब की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। कौन कहाँ जा रहा है? अकबर आफंदी अंदर आते हुए पूछने लगे, और रामिश ने गिलास फौरन एक तरफ रख दिया। वो पापा का इतना अदब जरूर करता था कि उनके सामने सिगरेट और अलाबला नहीं पीता था। हालांकि अकबर आफंदी सब जानते थे। अभी तो नहीं पापा, मैंने पाकिस्तान में प्लॉट देखा है, जबरदस्त लोकेशन है, जाना पड़ेगा फाइनल करने के लिए। रामेश ने झट झूठ बोला, अब पहली दफा अपने मुल्क गया है तो देख। शाहजेब ये दोबारा जाने के लिए फिर तैयार है। उसकी मिट्टी में कशिशी बहुत है। पापा अपने मुल्क की मोहब्बत में खोए हुए बोले। हाँ पापा, उसकी मिट्टी में वाकई बहुत कशिश है। रामेश हंसते हुए शाहजेब को आंख मारी, और शाहजेब उसकी जू मायने बात सुनकर उसको सिर्फ घूर कर रह गया, और जेरे लब उसे खबीज कहा। रामेश, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो तूने किया। बेटा एक बाप होकर, क्या बेटा एक बाप होकर तूने मुझे बेटे की तरह पाला है। बस एक और ख्वाहिश मेरी पूरी कर दे। अकबर आफंदी सोफे पर बैठे कुछ कुछ शर्मिंदा से बोल रहे थे। चेहरे पर तासुब था। पापा प्लीज, अब और मुझ अब और कुछ मत कहिएगा। सब आपका है। एक दुख ने आपको हार्ट पेशेंट बना दिया। लोग तो उधर तलाक लेते हैं और उधर दूसरी शादी कर लेते हैं। आपने किसकी खातिर खुद को बर्बाद किया पापा? रामेश कभी भी मामा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता था। अब तो बर्बाद कर लिया बेटा। जो सच्ची मोहब्बत करता है वही उसके दुख भी सहता है। खैर, मेरी छोड़ो। रामेश, मैं तुझे आबाद देखना चाहता हूँ। इस घर में बच्चों की किलकारियां सुनना चाहता हूँ। तू अकबर आफंदी ने फिर एक बार बेटे को मनाना चाहा। पापा प्लीज। शाहजेब, सुना नहीं तूने पापा क्या कह रहे हैं? फौरन जा, मारिया और बच्चों को लेकर आ। मैं इतनी देर में बात ले लेता हूँ। रामेश ने हमेशा की तरह बात बढ़ने से पहले ही खत्म कर दी। अकबर आफंदी दिल गिरफ्ता से हो गए।
وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا لاشعوری طور پر شادی جیسے بندھن سے خائف ہے۔ جو روپ اس نے ایک بیوی اور ماں کا دیکھا تھا، وہ اس رشتے سے بھی بدکتا تھا۔ اپنے گھر کو اس نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اب اپنی اس ایمپائر کو دوبارہ ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہار اپنے عروج پر تھی، ہر طرف رنگین پھول کھلے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ زمین پر سرسبز و شاداب مخملی چادر بچھ گئی تھی۔ فیری کی سالگرہ انہی دنوں میں آتی تھی۔ سہانی صبح تھی اور وہ تازہ گیلی گھاس پر ٹہل رہی تھی، اور رادیہ مسرور سی فیری کو پھولوں کو توڑتے دیکھ رہی تھی۔ جھولی میں بھرے تمام پھول اس نے رادیہ پر اچھال دیے۔ شریر بچی، رادیہ کھنکتی آواز میں بولتی اس کی طرف بڑھی تو فیری نے دوڑ لگا دی۔ اب فیری کہے لگاتی آگے تھی اور رادیہ اس کے پیچھے۔ مترنم ہنسی پتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں رادیہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ لچھے دار بالوں کو صرف لپیٹا ہوا تھا، اور اب وہ کھل کر پشت پر پیچھے پھیل گئے تھے۔ فیری کو اس نے پکڑ لیا تھا اور اب لان میں بیٹھی فیری کو دیوانہ وار پیار کر رہی تھی۔ چہرے کی پیلاہٹ کا نام و نشان نہ تھا، چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ یہ سب رامش آفندی نے محسوس کیا، جو اسے دوربین کے ذریعے بالکل اپنے قریب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے رات ہی پہنچا تھا، یا پھر اسے فیری کی سالگرہ یاد تھی۔ دیکھو، سورج نکلنا شروع ہو گیا ہے، جلدی سے کیک کاٹو۔ 1 پاؤنڈ کا کیک کے پاس رادیہ بیٹھتے ہوئے فیری سے بولی۔ کیوں ابھی کیوں؟ فیری چھری پکڑتے ہوئے وجہ پوچھ رہی تھی۔ اس لیے میری جان، جب تم نے میرے آنگن میں اجالا کیا تھا تب سورج روشنی پھیلانے کے لیے طلوع ہو رہا تھا۔ رادیہ فیری کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے فیری۔ رامش ریڈ کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس شوخ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں گفٹ تھا۔ رادیہ اسے دیکھ کر ورتہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ساری خوشی کافور ہو گئی تھی، دل سکڑ گیا تھا، اور ایک خوف نے اس کی آنکھوں میں گھر کر لیا تھا۔ انکل، آپ کو یاد تھی میری سالگرہ؟ ماما دیکھیں، انکل اتنی جلدی واپس آ گئے اور میرے پاپا پھر بھی نہیں آئے۔ فیری رامش کے گلے لگی رادیہ سے گلا کر رہی تھی، مگر رادیہ گمسم سی بیٹھی رہی۔ رامش اس کی یکلق بدلتی کیفیت کو بھانپ گیا تھا، اس لیے بولا، ڈونٹ وری، آج کے دن تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ یہ دن تو صرف فیری کا ہے نا فیری؟ اب فٹافٹ کیک کاٹ ڈالو۔ رامش سرگوشیانہ انداز میں بولتا فیری کی طرف جھک گیا۔ چلو، اب تمہیں تمہارا گفٹ دکھاتا ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔ رامش فیری کو باہوں میں بھرے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے رادیہ سے پوچھا بھی گوارا نہیں کیا، فیری کو یوں لے کر گیا تھا جیسے اس پر حق رکھتا ہو۔ فیری ضد میں آ جاتی اگر رادیہ اس کو روکتی تو خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ یا خدا، تو نے میری زندگی میں خوشیوں کا دور اتنا مختصر کیوں لکھا ہے؟ ایک سہانے خواب کی طرح۔ یہ سارے خوشکن خواب ہم لڑکیاں ہی کیوں دیکھتی ہیں؟ تتلیوں، جگنوؤں، تاروں اور پھولوں کے خواب۔ اور بے ارادہ ہی اسے اونچے اونچے اور بڑے خواب دیکھنے والی لیلا کی صورت یاد آ گئی، جب وہ فیری کو کیئرنگ سینٹر سے واپس لے کر آ رہی تھی۔ لیلا، تم یہاں؟ مری سے کب واپس آئیں؟ اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ رادیہ اچانک ہی لیلا کو دیکھ کر فوراً جذباتن میں بولی تھی۔ بس ایسے ہی، تم کیسے ہو؟ لیلا کی آواز میں شوخی تھی نہ کھنک، چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ لگتا ہے تمہیں مری کی تازہ ہوا راس نہیں آئی، رنگ بھی کتنا پیلا ہو گیا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہیں۔ رادیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں رادیہ، مجھے واقعی مری کی ہوا راس نہیں آئی، سب کچھ چھین لیا انہوں نے، میرا سب کچھ۔ لیلا کا لہجہ گلوگیر ہو گیا، آنکھوں میں تیرگی اترنے لگی، تو پھر وہ رکی نہیں، دوسری طرف کھڑے ایک رکشے میں بیٹھ گئی، اور رادیہ تو جیسے سناٹے میں آ گئی تھی۔ یہ ہم لڑکیاں ٹھوکر کھانے سے پہلے کیوں نہیں سنبھل جاتی؟ ہم لڑکیاں اپنی خواہشوں کی تکمیل اور خوابوں کو سچا دیکھنے کے لیے اندھی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہی خواب عذاب بن جاتے ہیں۔ سورج اپنا سفر تمام کر کے کہیں اور جلوہ افروز ہونے کے لیے غروب ہو رہا تھا، جب رامش کاپیاں چیک کرتی رادیہ کے قریب آ کر بولا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ابھی، اور اسی وقت، مگر یہاں نہیں۔ وہ صرف بتا رہا تھا،
अपने आने का मकसद। सॉरी, मैं मसरूफ़ हूँ। राधिया का लरसता हाथ रामिश ने देख लिया था। डोंट वरी, अगर मेरा कोई ऐसा-वैसा इरादा होता तो यहीं यहीं खड़ा वक़्त ज़ाया ना कर रहा होता। तुम्हारे भी भले के लिए है, कम ऑन। रामिश उस पर आछुटती निगाह डालकर कोठी की तरफ चल पड़ा। राधिया ये सोचकर चल पड़ी कि हो सकता है अपने रवैये पर शर्मिंदा हो और अब माफ़ी माँगना चाहता हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रामिश ने बिना कोई तमहीद बांधे अपनी ज़रूरी बात कह डाली और ये तो शौक सी हैरत के समंदर में गोताज़न थी। वो तो शुक्र था कि रामिश के इसरार पर वो एक सोफे पर बैठ गई थी, वरना शायद लड़खड़ा जाती। कितनी ही देर साकिन नज़रों से रामिश को घूरने के बाद अपने हवासों में आई तो नॉर्मल लहजे में बोली, रामिश आफंदी, तुम वाकई एक शातिर, चालाक और कामयाब बिजनेसमैन हो जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए अपनी लेबर को बोनस का लालच देता है, लेकिन साथ ही वर्किंग आवर्स भी बढ़ा देता है। तुमने मुझ पर बेशक दो एहसान किए हैं, मगर मेरी राय तुम्हारे मुतालिक हूंज वही है जो पहले थी, और मेरा इरादा अब भी नहीं बदला, और मेरा जवाब भी वही है। बेशक इस वक्त तुम मुझे जहर मिला लड्डू पेश कर रहे हो। राधिया उसकी नई चाल को जान गई। रामिश हर हाल में किसी भी तरीके से उसका फखर मान और उसके सर को झुकाना चाहता था। तो वॉट, फायदा तो इसमें दोनों का होता है। जैसे शादी के बाद मुझे बीवी और तुमको घर साइबान और आराम व ऐश मिल जाएगा। फिर क्या इरादा है? रामिश ने जानबूझकर औरत की कमजोरी, घर और छत का जिक्र किया, क्योंकि यही दो चीजें औरत ढूंढती फिरती है। रामिश की निगाह राधिया पर जमी हुई थी। वाकई इसमें मेरा ही फायदा है। ये चीजें मुझे कितने अरसे तक मुयस्सर रहेंगी? राधिया ने तेज निगाहों से उसको देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। क्या मतलब? रामिश ने जो सिगरेट सुलगा रहा था चौंक कर पूछा। मतलब ये कि ये शादी कितने दिन और या महीनों के लिए होगी? मतलब ये शादी कितने दिन या महीनों के लिए होगी? राधिया का सवाल खासा हकीकत पर मबनी था, और रामिश हैरत ज़दा सा उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था जो कितनी जल्दी उसकी चालाकी समझ गई थी। या फिर इस तरह के सवाल की रामिश को तवक्को ना थी। उसने सोचा था वो बाखुशी उसकी ऑफर को कबूल कर लेगी। हैरान क्यों हो रहे हो रामेश आफंदी? जिंदगी के तजुर्बात ने मुझे बहुत हकीकत पसंद बना दिया है। बेशक मैं एक मशरकी लड़की हूँ, इस तरह की बात मुझे जेब नहीं देती, मगर मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बहुत मजबूत इरादों की मालिक हूँ, और औरत चट्टान बन जाती है जब वो एक फैसला कर लेती है। ऐसा ही फैसला मैंने एक बार पहले किया था, जब मैंने अपने वालदैन की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज की थी। कोई मेरा फैसला बदल नहीं पाया था, और अब भी कोई नहीं बदल सकता। हजार टेढ़ी मेढ़ी चालें चल लो, मैं तुम्हारे चाल में नहीं फंसने वाली।